Hey guys, good morning, good afternoon, good evening. I'm your Jatva sir. This is your English Foundation channel, and today we are going to learn some advanced structures. Okay, so give heading advanced structures. Advanced structures. So what is advanced structures? It means how to speak English with the help of advanced structures. So that structures I will provide you today. Okay, with the help of that structures you can speak English anywhere. Okay. So structure is that subject plus want or wants to plus form of the verb plus other word. This is your affirmative structure. It means we have to use here want or wants to. It means चाहता हूँ या चाहती हूँ के सेंस में इसको यूज करते हैं स्पीकिंग में. स्पीकिंग में जब भी आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ बोलना हो तो आपको क्या करना है, आपको केवल सब्जेक्ट लगाना है. देन चाहता हूं या चाहती हूं जब भी बोलना है तो वांट टू या फिर वांट्स टू. वांट्स टू कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो. देन वांट्स टू जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई वी यू दे के साथ में हम आई वांट लगाते हैं, उसके साथ में हम वांट टू बोलेंगे. इन अदर ही सी इट या किसी सिंगुलर पर्सन या सिंगल नेम के साथ में हम वांट्स लगाएंगे तो वांट्स टू. ठीक है. अगर आपको जब कभी भी स्ट्रक्चर का यूज करना होगा या चाहता हूं या चाहती हो बोलना होगा, उस सेंस में आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं. इट मीन्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश. So with the help of this structure you can use this. First you have to add the subject, then you have to say want to or wants to, and you have to tag first form of the verb. After this then other word. So this is your structures and we can tag the examples from these structures. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आई वांट टू बिकम एन आईएएस. मैं उसे मारना चाहता हूं, आई वांट टू बीट हिम. मैं इस काम को करना चाहता हूं, आई वांट टू डू दिस वर्क. मैं उसे पत्र लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट अ लेटर हिम. मैं कार चलाना चाहता हूं, आई वांट टू ड्राइव अ कार. मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले क्रिकेट. मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले फुटबॉल. वह मुझे पत्र लिखना चाहता है. He wants to, not want to, wants. He wants to because he is a singular person. He is a single, ना. So he is a singular. That's why he takes wants. S और yes form of the verb. ये want का fifth form होता है जिसमें s लगा होता है. That is called fifth form of the verb. Okay? तो ये होता है wants to. तो वह मुझे पत्र लिखना चाहता है. He wants to write a letter to me. अब ये समझ में आ गया आपको want to का यूज कैसे करेंगे, wants to का यूज कैसे करेंगे. But when you make it negative, then what is your structures? Your structure will be changed if you want to make it negative. मैं इसे negative बनाना चाहता हूँ, I want to make it negative. Clear? So negative structure क्या होगा? Subject के बाद में लगाएंगे आप do not या फिर don't, otherwise doesn't. देखिए आपको पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर डोंट लिखना है, फिर डजंट. डोंट और डजंट दोनों में से कोई एक ही आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इट डिसाइड सब्जेक्ट्स. ओके. देन आफ्टर डोंट you have to add only first form of the verb want to, then first form of the verb, then other word. This is your negative structure. It means negative. Clear? I don't want to drive a car. I don't want to drive a car. I don't want to write a letter. Clear? Just like this. Use the structure and speak English. With the help of these structures, you can speak anything. When you say want to or wants to, then with the help of this structure, you can speak anything. Clear? I hope this way you will understood. Clear? How to use these structures. Clear? And where we use these structures. So where we need, if you want to speak, चाहता हूं या चाहती हूं, मैं उसे मारना चाहता हूं, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, I don't want to go there. वह यहां आना चाहता है, he wants to come here. वह यहां नहीं आना चाहता है, he doesn't want to come here. वह कार चलाना चाहता है, he wants to drive a car. वह कार चलाना नहीं चाहता है, he doesn't want to drive a car.
Just like this you have to say, you have to practice. First of all, what shall you do? What will you do for practice? You will have to practice with yourself, because you can't force anyone to speak English with you. Am I right or wrong? आप किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरे से इंग्लिश में बात कीजिए, बट you can express yourself, you can change yourself. You can't change your atmosphere, but you can change only yourself. So therefore you have to practice alone. Okay, look on the mirror on your face and practice with yourself. Then, so this was your negative structures. After this we will take interrogative structure. Do or does plus subject plus want to plus first form of the verb plus other word. This is your interrogative structure. Interrogative it means question mark. क्या वह यहाँ आना चाहता है? Does he want to come here? क्या वह यहाँ आना चाहता है? Does he want to come here? क्या मैं उसे मारना चाहता हूँ? Do I want to beat him? ठीक है, क्या मैं उसे पत्र लिखना चाहता हूँ? Do I want to write a letter? Clear? Just like this you have to say. क्या वह IAS बनना चाहता है? Does he want to become an IAS? This is the question. So according to that pattern you can express yourself. Clear? With the help of these structures. Okay. Second, do, does plus subject plus not plus want to plus first form of the verb plus other word. This is your interrogative plus negative structure. Interrogative plus negative it means you can say otherwise don't or doesn't. अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप don't या doesn't भी लिख सकते हो. Why? Because आप यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, या तो चाहो तो आप सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हो यहाँ पर. Clear? If you want to add here not, then you can express just like this short form. Otherwise you can express with the help of this structure. After subject you have to add not word. Clear? So do or does plus subject plus not, it means does he not want to come here? क्या वह यहाँ नहीं आना चाहता है? क्या वह कार नहीं चलाना चाहता है? Doesn't he want to drive a car? या फिर does he not want to drive a car? Clear? Just like this you have to express. अब इसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर. आपका क्या है? सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज देन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड. इस स्ट्रक्चर का यूज कब करोगे आप? when we use this structure in which situation? So if you want to say ना है, मुझे वहां जाना है, या मुझे इस काम को करना पड़ता है, it means it shows the compulsion. कंपल्सन का मतलब है मजबूरी. जब आपको प्रेजेंट में आपकी मजबूरी को व्यक्त करना हो, दिखाना हो, शो करना हो, उस कंडीशन में आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है. या फिर कोई लेडी या कोई महिलाएं या कोई गर्ल बोलती है कि यार मुझे खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी में अगर वो बोलती है, उनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा हो, उस कंडीशन में भी वही सेंटेंस या इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकती है. क्या बोल सकती है? आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर. मुझे इस काम को करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क. मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क. सो जस्ट लाइक दिस यू कैन एक्सप्रेस. मुझे सब्जी काटनी है, आई हैव टू चॉप द वेजिटेबल. ठीक है. मुझे पेचकस से टीवी खोलना है,
I have to open the TV with screwdriver. So just like this you can express. Clear? Second example, when we tag the negative, then you have to tag subject, don't or doesn't. If you want to make negative, then what will you have to do? You will have to add subject, don't, doesn't, then have to plus first form plus other word. This is your negative structure. Negative structure, it means I don't have to go there. You don't have to do this work. आपको इस काम को नहीं करना है या फिर नहीं करना पड़ता है. इन दिस कंडीशन यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर. क्लियर? आप इस कंडीशन में इस सेंटेंस या इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं. कब? जब आपको नेगेटिव में अपनी कंपल्सन को प्रेजेंट में बताना हो तब, शो करना हो तब. ठीक है? आप बोल सकते हैं मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है. आई डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट. मुझे इस काम को नहीं करना है. आई डोंट हैव टू डू दिस वर्क. ठीक है? लास्ट में आएगा ये इंट्रोगेटिव, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क. दिस इज योर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. इंट्रोगेटिव मीन्स आस्क ए क्वेश्चन. ठीक है? इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर हम देखें तो ये सभी स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही लिए गए हैं. ठीक है? जो कि एडवांस स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, लेकिन अभी तक किसी भी पर्सन को ठीक से जानकारी नहीं रहती है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्ट्रक्चर, ओके, इन माय क्लास. सो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड. इट मींस यू हैव टू यूज डू आई हैव टू प्ले क्रिकेट. क्या मुझे क्रिकेट खेलना है? डू आई हैव टू प्ले क्रिकेट. क्या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है? या फिर क्या मुझे खाना बनाना पड़ता है? क्या मुझे खाना बनाना है? डू आई हैव टू कुक फूड. ठीक है? क्या उसे इस काम को करना पड़ता है? ठीक है? देन क्या उसे इस काम को करना पड़ता है? डज ही हैव टू डू दिस वर्क. क्या उसे मैदान में दौड़ना पड़ता है? डज ही हैव टू रन इन द ग्राउंड. ठीक है? देन क्या उसे नदी में तैरना पड़ता है? देन डज ही हैव टू स्विम इन द रिवर. जस्ट लाइक दिस यू कैन एक्सप्रेस. समटाइम्स यू स्पीक जस्ट लाइक दिस. कभी कभी आप ये बोलते हो कि यार मैं खाना बनाता तो हूँ, मैं इस काम को करता तो हूँ. तो वह भी आपके एडवांस स्ट्रक्चर में आता है, जिसमें हम डू और डज के बाद में टू लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, सॉरी. ठीक है? सो आफ्टर डू और डज यू हैव टू टैग ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश. दिस इज ऑल्सो योर बेसिक और एडवांस स्ट्रक्चर्स. सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड. दिस इज योर एडवांस स्ट्रक्चर एंड अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. ओके? सपोज मैं वहां जाता तो हूं, आई डू गो देयर. क्या हो जाएगा? आई डू गो देयर. ये सुनने में लग रहा होगा सर एक साथ डबल वर्ब लगा है, बट दिस इज योर एडवांस स्ट्रक्चर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डोंट थिंक दैट इज रॉन्ग, बट दिस इज करेक्ट. क्लियर? अदरवाइज यू कैन सर्च. ठीक है? इसका नेगेटिव बनाओगे तो आपको आई डोंट गो देयर ही बनेगा, बट ये भी आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही स्ट्रक्चर है. बट मैं वहां जाता तो हूं, अगर आपको बोलना हो तो हूं, तो है के सेंस में ये स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है. जो चीज आपको नहीं पता मैं वही चीज यहां पर बता रहा हूं. क्लियर? दिस इज योर एडवांस स्ट्रक्चर. सो मैं वहां जाता तो हूं, आई डू गो देयर. वह इस काम को करता तो है, ही डज डू दिस वर्क. ही डज डू दिस वर्क. वह खाना पकाती तो है, सी डज कुक फूड. सी डज कुक फूड. मैं नदी में तैरता तो हूं, आई डू स्विम इन द रिवर. देन यू कैन स्पीक इंग्लिश जस्ट लाइक दिस with the help of this structures. Clear? Then एक और एडवांस स्ट्रक्चर है सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस
do or does plus nothing plus but plus फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। ये स्ट्रक्चर देखिए एक बार याद कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, नथिंग प्लस बट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। इसका मतलब है, इसका भी सेंस कब करते हैं, डू और डज प्लस नथिंग का यूज कब करते हैं, इसका यूज आप तब करोगे जब आपको लगेगा कि वह डांस ही करता रहता है, वह डांस ही करता रहता है, शी डज नथिंग। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। इस स्ट्रक्चर का यूज आप कब करोगे, इस स्ट्रक्चर का यूज आप तब करोगे जैसे आपको बोलना हो कि वह डांस ही करता रहता है, तो ही डज नथिंग बट डांस, वह करता कुछ नहीं बट डांस, सिवाय डांस करने के, मतलब डांस ही करता रहता है। क्लियर? सो जस्ट लाइक दिस यू कैन एक्सप्रेस इन इंग्लिश। क्लियर? दैट थिंग्स यू कैन एक्सप्रेस इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, शी डज नथिंग और he does nothing but dance। ठीक है? मैं वहां जाता ही रहता हूं, मैं वहां जाता ही रहता हूं, I do nothing but go there। ठीक है? मैं वहां जाता ही रहता हूं but go there, मैं वहां जाता ही रहता हूं but go, इट मीन्स मैं कुछ नहीं करता, I do nothing but go, लेकिन जाता हूं, मतलब सिवाय जाने के मैं कुछ नहीं करता। दैट इज कॉल योर दिस स्ट्रक्चर्स। क्लियर? वह पत्र लिखता ही रहता है, वह पत्र लिखता ही रहता है, he does nothing but write a letter, he does nothing but write a letter। वह क्रिकेट खेलता ही रहता है, he does nothing but play cricket। वह पेचकस से टीवी खोलता ही रहता है, then he does nothing but open the TV with screwdriver। Clear? So with the help of these structures you can express your own words in English। Okay, then your third structure is that there plus is plus nothing plus but plus फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। देयर के बाद में आपको लगाना है इज, देन आपको यूज करना है नथिंग, देयर इज नथिंग, फिर लगाना है आपको बट, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सर? सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हो, गो, रन, वॉक, वॉच, लुक, ठीक है, सी, जो भी है फर्स्ट फॉर्म आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है? तो देयर का यूज कब करेंगे सर? इज के साथ में, देयर इज नथिंग। तो देयर का यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट का अभाव हो। क्या हो? जब सब्जेक्ट के अभाव हो, जब सब्जेक्ट ना हो। ठीक है? उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के अभाव में हम देयर लगाते हैं, देयर इज नथिंग। जैसे बोलते हैं ना, वहां पानी ही पानी है, सो देयर इज नथिंग बट वाटर। सॉरी, यहां पर आपको नाउन लगाना है। क्या लगाना है? नाउन लगाना है। ठीक है? देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग, वहां पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग, वहां कुछ नहीं है, बट वाटर, इट मीन्स वहां पानी है। वहां रेत ही रेत है, रेत के लिए वहां रेत ही रेत है, तो देयर इज नथिंग बट सैंड। क्लियर? वहां लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉयज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस जस्ट लाइक दिस।